Now let's start with our new topic, which is square roots. Okay, the square root is the inverse operation of square root. तो square root क्या होता है? It is the inverse operation of square root. Inverse का मतलब क्या होता है? कि inverse का मतलब होता है coming in a opposite direction. Okay, so what is inverse? Inverse operation is opposite. Okay, in a moving in a opposite direction. Is that clear? So to find the number with a given square is called as square root. Is that clear? So किसी भी number को का squaring to find the number with a given square is called as square root. Is that clear? तो आपको समझ में आया? तो इस कैसे एक एग्जांपल देखते हैं. Like हम 2 square को क्या लिखेंगे? See here. We will write. Okay, just hold on. हम 2 square हमेशा लिखते हैं. See here. Writing 2 square is equal to, it will be 4. Okay, if you are moving in this direction, you will call it as a squaring. ठीक है, आप अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, is that clear? If you are moving in a from right to left, from 4 to 2 square, we will call it as a square root. Square root. ठीक है, हम क्या कहेंगे? Square root for this and squaring for this. Is that clear? Means if you are moving from 2 square to 4, we call it as it's we हम क्या बोलेंगे? We will call it as a squaring the number 2. But coming backward from 4 to 2 square, we will call it as a square root. So अगर क्वेश्चन आ गया what is the square root of 4, we will tell in, we will write the square root of the 4 is 2. Is that clear? So this is our square root. Similarly, now remember there are two square roots of any number. किसी भी numbers का दो square roots होता है. One is positive, okay? One is positive, another is negative. ठीक है? Another is negative. Is that clear? One is positive, another is negative. ठीक है? One is positive, another is negative. तो ऐसा क्यों होता है मैं वो भी बता देता हूं. Look here. If you were to write like this, suppose मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे सी या 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट एज अ 2 इंटू 2, विच इज ऑब्वियसली 2 टू ज़ा 4. इज दैट क्लियर? नाउ अब मैं यहीं पे मैं लिखूंगा -2 स्क्वायर, तो आंसर विल बी -2 into -2. What is the answer? 2 into 2, 4, and minus into minus plus. So if you were to see, आप यहाँ पे देखोगे तो फाइनल रिजल्ट जो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, दिस एंड दिस बोथ आर सेम. इज दैट क्लियर? हेंस किसी भी नंबर का दो स्क्वायर रूट होगा, इधर इट विल बी प्लस और माइनस. इज दैट क्लियर? so this is our टू स्क्वायर रूट. तो द स्क्वायर रूट ऑफ द, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया? द स्क्वायर रूट ऑफ द 100 कुड बी 10 और -10, +10 और -10, +10 और -10. Okay, positive and negative. Now how we can represent the square root? So remember the symbol for the positive square root is like this. ठीक है,
मतलब अगर हमें लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 is equal to 2. Is that clear? Now remember, square root of -4 exist नहीं करता. Do not exist. Is that clear? तो -4 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कंप्लीटली, ये नोटेशन बहुत गलत आता है. तो क्या करें फिर ऐसे वक्त पे, अगर आपको -4 अगर आंसर आ गया तो वी विल ऑब्वियसली हम उस रिजल्ट को ही रिमूव कर देते हैं. इसलिए इज दैट क्लियर? इसके बारे में भी है डिटेल में स्टडीज, लेकिन वो कॉलेज लेवल्स में होता है, जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स वगैरह कहते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह कहते हैं, which is not related in your syllabus, not related in your topic till school standard. Is that clear? Fine. So this is how you can represent the square root. Now, square root to represent, how we can find the square? So you can find the square root by various multiple methods, बहुत से method से. One of the method is through repeated subtraction method. ठीक है? So what is the repeated subtraction method? As we know that every square number is the sum of consecutive odd numbers. हमने अभी अभी कुछ देर पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे कि हमने देखा था कि कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, अप टू हम लोग कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है? कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1, सो वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डूइंग अपोजिट. याद रखो, जब हम लोग स्क्वायर कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, क्या कर रहे थे, वी वर राइट 1 प्लस 2 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. हमने किया था ना, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, हमने किया था, एंड वी वर गेटिंग द रिजल्ट. इज दैट क्लियर? सो इसी तरह से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल डू द सब्ट्रैक्शन मेथड. जैसे यहाँ पे कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय रिपीटेड एडिशन मेथड और स्क्वायर रूट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. सी हियर, दे वर रिपीटेड ऑड नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 64 को फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से माइनस किया, देन उसके बाद अनदर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज -3, अनदर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज -5 एंड -7 एंड सो ऑन अप टू -11. ठीक है, पहले -1, फिर -3, फिर -5, -7 and so on up to -11, and they got the final answer as 20. Is that clear? So this is how we can find. Okay, this is quite lengthy. ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए ये मेथड भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता. Is that clear? But this is also one of the method to find the square root. Another method which is mostly used and one of my favorite method to get the square root is prime factorization method. Another method is prime factorization method. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड वी नीड टू लिस्ट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर एंड देन मेक द पेयर ऑफ और द टू. ओके, एंड देन राइट द नंबर. जैसे यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 784 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, आई विल शो यू हाउ यू कैन डू दिस बाय गिविंग एन एग्जांपल. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने अपने पुराने स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था. लेट्स सी, आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल नंबर. ठीक है, मैं एक स्मॉल नंबर कंसीडर करूंगा, लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ like taking an example here. Okay, my example will be like
टेक एन एग्जांपल ऑफ 64, ठीक है। 64 को हम कैसे करेंगे, सी ईयर प्राइम फैक्टर्स आपने अपने जूनियर स्टैंडर्ड्स में किए थे, तो 64 के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली डिवाइड करते चले जाएंगे। तो टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर, अगेन टू वन ज़ा टू, टू सिक्स ज़ा 12, then टू एट ज़ा 16, टू फोर ज़ा 8, एंड टू टू ज़ा 4, एंड देन अगेन यहाँ पे क्या आएगा, टू वन ज़ा 2, ठीक है, यहाँ पे वन। तो यू कैन सी हियर, तो ये हमारा हो गया टू, ये हो गया हमारा टू, ये हो गया हमारा टू। इज दैट क्लियर? तो सी हियर मल्टीप्लाई दिस, तो अब क्या करेंगे, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर, टू इंटू टू, सॉरी मीन्स व्हाट, आपको कैसे करना रहेगा, सी हियर मैंने आपको बता दिया था। इसको देखने के बाद क्या होगा, सी हियर टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, इंटू टू 16, 32 इंटू 64। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से सिमिलर टर्म पेयर्स लेंगे, पेयर, और उनको एक बार लिखेंगे, टू इंटू टू इंटू टू, so our final answer will be 8. So what is the square root of 64? The square root of 64 is 8. Is that clear? This is how we can find. More we will learn, we will, आप लोग और इसके बारे में पढ़ लेंगे जब आप लोग इसके जब आप लोग एक्सरसाइज कुछ करेंगे, ठीक है। So this is how we can find the prime factorization method. Another method is division method. Division method भी इस्तेमाल किया जा सकता है स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू फाइंड द वेरी कॉम्प्लिकेटेड square root for the very complicated number. This we will learn when we will do our exercise question. Next is the square roots of decimals. Now remember one thing, square roots of decimal, जैसे division decimals का हो सकता है उसी तरह से decimal numbers के square roots भी ढूंढे जा सकते हैं. This also we will learn in a quite detail when we will practice our exercise question. Is that clear? Now this is all about the introductory part of the square root. Let's begin with our exercise question.